he looked at me. He said, "Are you a shaman?" I Hmm. said, "Excuse me, sir. What is shaman?" मैं रात को सो रही हूँ, ठक 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 आवाज आ रही है, जैसे कोई खटखटा रहा है। एक शामन ब्रिज बनाता है इस वर्ल्ड और दूसरे वर्ल्ड में। वो मानता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके मिनिमम 4 पार एनिमल्स होते हैं। If you can explain in the simplest words, what is this shamanic healing? What is it all about? शैमनिज्म में क्या होता है कि हम जर्नी पे जाते हैं। सोल और स्पिरिट वर्ल्ड की जो हीलिंग्स हैं वो शैमानिक हीलिंग। किस तरह की प्रैक्टिस आपने की है? मैंने फाउंडेशन ऑफ शैमानिक स्टडी माइकल हार्नट से किया था 2013 में बाली में जाकर। एज अ क्लाइंट अगर मैं समझना चाहूँ कि क्या मुझे ज़रूरत है शमानिक हीलिंग की, इसमें अगर आपको चाहत है तो आदेश आ जाएगा। तो एज अ हीलर आपने आज तक कौन सी ऐसी हीलिंग है जो आपको मतलब छू गई हो, जो अभी तक याद हो? अच्छा, उन्होंने मुझे बताया था मैं 35 साल का था और राजकुमार था और किस वजह से मौत हुई ये सब कुछ बताया था। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो हाउ डज अ टिपिकल शमानिक सेशन लुक लाइक? और जो ड्रम्स है वो आपको ग्राउंड करती हैं और एक रिदम बनाती हैं, डग 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 डग। वो मानता है कि पैरेलल रियलिटीज हैं, ऑल्टरनेट स्टेट्स हैं जहां हम जर्नी करके जा सकते हैं। मैंने लास्ट एपिसोड में आप सभी के साथ शेयर किया था कि हीलिंग डिसॉल्व्स द प्रॉब्लम रादर देन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम. And with that thing in my mind, we are starting a new series on healing. We are going to bring masters and healers on the show that will share with you different healing techniques. Last year was all about transformation journeys, but this year we are going to bring tools and techniques for you. On that note, we have Vibha Gurtu. She is a shamanic healer and she has been in different modalities from Reiki to pranic healing to past life regression since last 20 years. Her expertise in shamanic healing since last 11 years has been a boon to all the people who are in touch with her. She has been healing them, helping them resolve their problems in life. She has been a founder and director of Spiritual Tara Organization, which is a spiritual hub for all the spiritual healers and practitioners. She has also been a founder trustee of Om Tara Organization, which has mission to foster well-being in underprivileged people. A very warm welcome with Vibhaji. I'm so Thank you. thrilled. I'm so blessed to have you on this session. Your energy, your aura is vibrating, and I can feel that energy here sitting like miles away from you. And I'm so looking forward to this conversation. Thank you so much for joining us today. How are you? I'm fine and thank you, Yashika, for the invite. Thank you. You're welcome. You're welcome. As part of this podcast, as part of a practice that we follow in this podcast, we connect with the divine energy for a few minutes and we set an intention and we surrender the session to the divine. And in my experience, every time I surrender the session, it's like his energy is taking care of the entire conversation. And it come every time it comes up so, in a unique way, the way I have never planned it. So I definitely believe in connecting with that energy and letting him govern the conversation. So I request you, let's meditate for a few minutes before we get into the conversation. And I'll be sharing my intention on the channel and I request you to share yours as well. So let's just take 2 minutes. Okay, Vibhaji, I share my intention first. And my intention for this is to understand shamanic healing, to understand how it can help me or other people like me in their healing journeys. And I have no clue what is it. I want to understand it from the basics, and I think you are the right person for that. So I'm gonna get hold of you and drive this all this information through you so it can add value to my life. And yeah, that's it from my side. So what's your why you want to have this conversation? I don't know the why actually. आपसे बात हुई और ऐसा लगा कि एक मौका है जो प्योर एनर्जी के साथ आ रहा है और एक कुछ और जानने के लिए आ रहा है, यू नो, और सबको पहुंचाने के लिए उस बातचीत को। वो जो आपकी आवाज में जो खनक थी, उसने मुझे कहा यस लेट्स डू इट, यार इट्स एज सिंपल एज दैट। Thank you so much. और बाकी इंटेंट ये कि जो भी इस पॉडकास्ट में बातें हों, जो सुनने वाले हैं वो इस पूरे पॉडकास्ट में से कुछ भी जो पा सकें वो पाएं, और अगर अपने आप से रूबरू हो सकें तो बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि उन्हीं पलों में शायद हम उस एक ईश्वर का हमें दर्शन हो जाते हैं जब आप कहते हो हाँ
और जब हम नहीं भी करते हैं तो हमें अपनी चाहतों का पता चल जाता है. So that's what intent would be. Beautiful, beautiful, amazing. And I cannot wait to start this conversation. I'm so thrilled. So let's start with this. It's all about shamanic healing. And if you can explain in the simplest words, what is this shamanic healing? What is it all about? So shamanism माना जाता है कि सबसे पुराना एक ऐसा जिसे हम ये भी नहीं बोलेंगे कोई धर्म नहीं है, कोई इसका रिलीजन बेस नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिस Mhm. जो जो 1 लाख साल पुरानी इसकी जो पता चलता है, इट गोज बैक, जो जो बेसिक इसका लोग कर lineage है. रहे थे, लीनेज है. और जो लोग चाहे वो ट्राइबल्स जो यूज करते थे और 5 तत्वों के साथ कनेक्ट होते थे, Hmm. राइट, और हर किसी चीज को वो जीवंत मानते थे. Hmm. हर पौधे को, वनस्पति को, हर पत्थर को, Hmm. हर हर जानवर को, हर सोच को, और इवन डेथ को और उसकी जर्नी को, हर विचार को, हर चीज को वो जीवंत मानते थे कि वो जीवित है. विचार को भी. विचार जीवंत है, उसमें धड़कने हैं. तो वो कहते हैं कि भाई अपने आप को ठीक रखो. शमानिक हीलिंग में एक बहुत खूबसूरत है कि पहले वो अपने आप को एम्पावर्ड रखता है और फिर वो एम्पावर कर रहा होता है. वो मानता है कि पैरेलल रियलिटीज हैं, ऑल्टरनेट स्टेट्स हैं, पैरेलल रियलिटी है जहां हम जर्नी करके जा सकते हैं. शामनिज्म में वो जैसे ट्री ऑफ लाइफ माना जाता है कि रूट्स है, तना है, फिर ब्रांचेस हैं और फल हैं, उसी तरह से वो डिवाइड करते हैं. और वहां पर एक बहुत खूबसूरती से उन्होंने 3 वर्ल्ड में इस चीज को डिवाइड किया है. एक है लोअर वर्ल्ड, Hmm. और लोअर वर्ल्ड का यहाँ पे नेगेटिविटी से कोई मायना नहीं है. Hmm. इंसान और इंसान की योनि से जितना नीचे है, Hmm. जो पहले रॉक्स आई, फिर प्लांट्स आए, Hmm. राइट, फिर मछलियां और सारे जानवर आए, रेप्टाइल्स, फिर जानवर आए, Hmm. राइट. तो वो जो पूरा है, जो इंसान बनते तक Hmm. जितना नीचे है, वो लोअर वर्ल्ड है. Hmm. और फिर अपर वर्ल्ड है, जो इंसान, और उसके बाद मास्टर्स, गाइड्स, और फिर एक वो अपर वर्ल्ड है जिनसे हम मदद मांगते हैं, जिनसे हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, Hmm. जिनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं, जिनसे हम अपने दिल की बात करते हैं, वो अपर वर्ल्ड है, Hmm. Hmm. राइट. और मिडिल वर्ल्ड है ये जहां मनुष्य रह रहा है Hmm. इन तीनों, इन दोनों के साथ. Hmm. तो 3 तरह के वर्ल्ड है उनके. तो नीचे के वर्ल्ड एनिमलिस्टिक है, तो Hmm. वहां रॉक्स हो या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो एनिमलिस्टिक पावर आती है, राइट. Okay. Hmm. और ऊपर के वर्ल्ड से हमें गाइडेंस मिलती है, हमें मदद मिलती है, और ब्लेसिंग्स मिलते हैं, आशीर्वाद मिलते हैं. Okay. और ये दोनों को लेकर वो अपने आप में बैलेंस क्रिएट करता है और इस वर्ल्ड में रहता है, सिंपल तरीके से. Okay, so one thing is grounding it down and another thing is giving एक it ग्राउंडिंग dignity. है, एक ऊपर है. Understood, understood. और So, फिर इस वर्ल्ड में रहना, तो वो एक ब्रिज करता है. और फिर ऑल्टरनेट रियलिटीज हैं उसके लिए, पैरेलल रियलिटीज चल रही हैं उनके लिए, यहां पर ही और इससे अलग भी सब कुछ है. जो है वो सच है और वो एनर्जी है. इसीलिए आफ्टर लाइफ की बातें भी वो उनके लिए एनर्जी की बातें हैं. ये एनर्जी है उनके लिए. alternate realities का क्या मतलब? कैसे एक शमानिक मतलब हीलिंग? जैसे हम कहते, हाँ, जैसे हम इधर गए, हमने जर्नी की. शामनिज्म में क्या होता है कि हम जर्नी पे जाते हैं, हम्म. हम फ्रॉम टू जाते हैं. जी. जैसे आप कहीं जर्नी करते हैं, आपने आप मुंबई में हैं, आपने मुंबई से दिल्ली आना है, तो आप कहेंगे फ्रॉम, जब आप उसकी बुकिंग करने लगते हैं, टू हम्म. दिल्ली, जी. राइट. जी. सो साधन आपके जो होंगे वो आपका अलग होगा, लेकिन वो जर्नी में निकलते हैं. पहले नीचे निकलते हैं जर्नी में, पूरे अपने एनिमलिस्टिक, वो मैं आपको बताऊंगी कि एनिमल पावर्स की, एनिमल पूरे एनिमल्स अपने इकट्ठे करते हैं, सबको धन्यवाद करते हैं, ग्राउंड करते हैं अपने आप को. फिर पूरी की पूरी शक्ति लेकर ऊपर आते हैं जब आपको शक्ति की जरूरत है, राइट. ओके. ओके. आशीर्वाद की जरूरत है तो वो फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर की वर्ल्ड में जर्नी करते हैं. ओके. हाँ. अंडरस्टूड. और फिर वहां से पूरी शक्ति लेके फिर यहाँ आते हैं, आशीर्वाद लेके, हीलिंग करा के फिर वापस आते हैं, वहीं पे नहीं रह जाते. ओके. एक शामन ब्रिज बनाता है इस वर्ल्ड और दूसरे वर्ल्ड में. तो चाहे आप कहते हो जो आत्माएं हैं उनसे बात करना, एंसेस्ट्रल हीलिंग्स आपके जो हैं उनसे बातचीत करना, कई बार सोल स्पिरिट वर्ल्ड की, जितनी भी सोल और स्पिरिट वर्ल्ड की जो हीलिंग्स हैं वो शमानिक हीलिंग है. सोल एंड और वो ये, स्पिरिचुअल हीलिंग्स. ओके. हाँ, और वो ये भी मानते हैं कि आपके जितने भी बॉडी के अंग हैं उसमें भी सोल है.
ईच आपके बॉडी लिवर पार्ट। में भी सोल है, तो वहां पे साइकिक सर्जरीज भी होती हैं। ओके। वही वो कहते हैं कि आपने सर्जरी करा ली, पर उसको हील करना, इसका मतलब वो जीवंत है, उससे बात करो, उसको बोलो हम्म। तू ठीक है, उसे प्यार करो। Oh, I read this book, Soul Talks. या So it was about this, that you can talk to your body part, you can तो get the message which the disease is trying to convey you, and you टोटली can. टोटली Oh my यू God, this गेट द is मैसेज, यू एंड life दे आर द changer. ब्रिज। सो वो ये नहीं कि, और वो हमेशा स्पिरिट से के साथ मर्ज होके काम करते हैं, Amazing, स्पिरिट वर्ल्ड amazing. के साथ मर्ज होके। वो अकेला नहीं करेगा शामन, वो Okay. स्पिरिट वर्ल्ड के साथ मर्ज होगा। राइट, उसके Hmm. भी तरीके हैं जिस तरह से मर्ज होता है, चाहे वो ड्रमिंग करके हो रहा हो। Hmm. राइट, Hmm. जैसे हम घंटियां बजाते हैं तो एक ट्रांस में आते हैं। Hmm. Hmm. जब Hmm. एक साइड में जब आरती हो रही थी, धुम धुम दुम Right, दुम right. दुम, राइट, तो वो उसमें फिर वो जर्नी पे निकलता है, ड्रमिंग डुम डुम डुम। जब आप परेड भी देख रहे हो, अरे भाई ड्रम की आवाज आ गई, दुम 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 दुम, आदेश पहुंच रहा है, मैसेज पहुंच रहा है, यहां तक पहुंच गए, डुक 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 डुक। सो उनके एक रिदम में वो फिर Hmm. एक डीप स्टेट पे जाते Is हैं। it a kind of जैसे sound healing? मतलब is. साउंड हीलिंग भी शामनिज्म में आ जाती है, क्योंकि Okay. साउंड्स के साथ, यही नहीं शामनिज्म के, क्योंकि ये बहुत पुरातत्व है, Hmm. और कई जगहों पे ये तंत्र के साथ भी अलग तरह, तंत्र तो शिव और शक्ति के साथ आ गया, Hmm. राइट, Hmm. बट ये आया आपकी इनर जर्नी के साथ, सोल जर्नीज के साथ आया शामनिज्म। Okay. So सोल की how, हीलिंग्स है। जैसे हम रेकी में भी साइकिक सर्जरी करते हैं, पास्ट लाइफ हाँ, रिग्रेशन में भी एक तरह की हीलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज हीलिंग्स? तो रेकी है यूनिवर्सल एनर्जी, ठीक है। शामन है जो ब्रिज है बीच में, और वो स्पिरिट वर्ल्ड से मर्ज होता है और तब काम करता है, आदेश लेता है, मैसेजेस लेता है और वापस आ जाता है और ओके। नॉर्मल जिंदगी बिताता है। वो ट्रैवल करता है। तो ओके। वहां पे पार एनिमल्स हैं सबके। वो मानता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके मिनिमम 4 पार एनिमल्स होते हैं। एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट? मतलब। वो जर्नी पे जाते हैं। एक ओके। तंदुरुस्त बच्चे के मिनिमम 4 पार एनिमल्स है। जैसे हमारे अगर हमारे यहाँ पर हम बोलें तो लक्ष्मी जी का उल्लू है, हम्म। वाहन जिसे हम कहते हैं पार एनिमल, वो वाहन व्हीकल्स। हम्म। तो कृष्ण के अपना है जो गरुड़ वाहन है। है, गरुड़ है, और उसी तरह से गणेश जी का चूहा है, हम्म। शिव जी का नंदी है। तो वो कहते हैं कि हर इंसान के अपना पावर एनिमल है। वो पावर पावर लेने के लिए एनिमलिस्टिक कहते हैं ना, एनिमल पावर। अच्छा, तो तो वो हाँ, एनिमल बीइंग जिसके थ्रू एक शामन अपने आप को ग्राउंड कर सकता है। ग्राउंड करता है, पावर लेता है, और हम्म। धरती माँ के साथ है, पांचों तत्वों के साथ है, क्योंकि बहुत पुरानी बेसिक्स थे ना। हम्म। जब वो सितारों से बात कर रहे हैं, जब वो चंद्रमा के साथ हैं, जब वो सूर्य को समझ रहे हैं, जब वो पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, सब तत्वों को पूजते हैं, हर दिशा को पूजते हैं, हर हर परिंदे को, हर पशु को, हर वनस्पति को पूजते हैं, तो राइट, हर किसी को वो पूजते हैं, हर किसी को मानते हैं वो जीवंत है, उसको वो वैसे ही ट्रीट करते हैं कि उसमें जान है। हम्म। खूबसूरती ये है। तो सबसे पुराना माना जाता है साइबेरिया में, फिर मंगोलिया में, फिर ऐसे करके करके आप जैसे माचू पिचू जाते हैं, हम्म। मैक्सिमम जो पुराने जहां पर हैं कल्चर्स रहे हैं, इंडिया इंडिया में भी, इंडिया में इंडिया तो में शामन्स हैं कहाँ पे ओरिजिन रहा सब होगा? जगह, सब जो पुराने, जिसको वही मैंने कहा, वहां पे जाके तंत्र का एक पार्ट है वो जो समझ पाते हैं कि हर 5 तत्वों के साथ जो पूजा कर रहे हैं, जिसे हम हवन कहते हैं, अग्नि पूजा। जब हम हम्म। गंगा जी को नहाने जाते हैं तो पानी में जा रहे हैं, तो ये शामन, ये रिचुअल्स हैं। ओ। फायर सेरेमनीज होंगी, वाटर सेरेमनीज होंगी, आपको पवित्र करने के लिए वाटर सेरेमनीज होंगी। आपको ओ। जो हम अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप कर रहे हैं, उनमें अपनी व्हाइट सेज, जो वहां पर पत्ते मिलते थे, व्हाइट सेज से आपको आपकी ऑरा क्लीन हो रही है। ओ, दैट इज ऑल शैमनिज्म। इट इज ऑल्सो, क्योंकि पुराने से ही आ रहा है ना, जैसे हमारे यहाँ पे भारत, उसमें पुरानी चीजें, तो वो अंडरस्टूड। जो जो बहुत ट्रेडिशनल हम्म। वहां के लोग, वो जो प्रैक्टिस करते हैं। ब्यूटीफुल। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो हाउ डज अ टिपिकल शमानिक सेशन लुक लाइक्स? तो पहले तो बातचीत होती है, हम्म। आपने बातचीत की, उसकी जो भी इशू है, हम्म। तो कई बार आपको लगता है कि यहाँ पे ये सोल का हिस्सा कहीं कहीं रह गया। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। किसी के, जैसे कोविड के टाइम में भी या उसके बाद भी, जब कभी आए किसी के पेरेंट एक चले गए, हम्म। आकस्मिक डेथ हो गई, हम्म। और वो एक वॉइड रह गया। राइट। पेरेंट है, बट ये तो मैं एक एक किस्सा मैं वैसे बता रही हूँ, हम्म। बट किसी के पार्टनर है, किसी का दोस्त है, किसी के भाई बहन है, बच्चा है किसी का, हम्म।
और तुम्हारा ऐसा हुआ कि तुम वापस वैसे रह ही नहीं पा रहे हो, हुँ, तुम वो हो ही नहीं जो पहले थे। राइट। कुछ कुछ बदल गया है, हुँ, कुछ यहाँ पर दुख है। अभी किसी का पेट, अभी मेरे बेटे का, हमारा 15 साल बड़ा पेट पूर्ण हुआ, मतलब अपनी यात्रा में निकल गया असौर। तो मेरे बेटा जिसके साथ वो सोता था, वो ऐसे लगा माँ यहाँ पर कुछ चला गया है। हुँ, सो मैंने उसे बोला कि इजाजत है मैं हीलिंग दूं? हुँ, इसे नहीं, अभी नहीं, अभी आई वांट टू मोन एंड ग्रीव। हुँ, आई सेड गो थ्रू द स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग। हुँ, सो मैं बता रही हूँ जो अभी रिसेंट हुआ, हुँ, राइट। हुँ, और उसके बाद अब उसको मैंने जब बोला इजाजत है, हुँ, सेड हाँ। हुँ, तो मैं फिर जर्नी में गई, हुँ, अपने आप को पहले मैंने अपने पार एनिमल से मर्ज किया, और उसके बाद मैं जर्नी में गई अपर वर्ल्ड में, हुँ, और उस आत्मा से, उससे जो गया है उससे बात की, उसके मैसेजेस लिए, हुँ, वो क्या बताना चाहता है, क्या है, सब कुछ किया। और वो सोल पोर्शन हुँ, जो कहीं टूट के कहीं चला गया है, फ्रेगमेंट हो गया है, चला गया है, उसको भी पूछा, क्योंकि शैमनिज्म की एक बहुत खूबसूरत चीज है कि वो बिना इजाजत कुछ नहीं करता। तो हुँ, सोल से भी पूछेंगे। तो उससे ओके। पूछा क्या तुम वापस आना चाहते हो, क्या समय है तुम्हारा ये ठीक? हुँ, तो हुँ, कई बार वो मना कर देते हैं कि नहीं अभी नहीं हुआ, हुँ, अभी समय नहीं, अभी और लर्निंग होगी शायद, व्हाटएवर। हुँ, तो हुँ, उसने कहा हाँ मैं आना, तो उसको बहुत प्यार से लेकर आके और तुम फूंक देते हो ब्यूटीफुल। आठ में। और यहाँ ब्रह्मनादर, ये हुँ, हुँ, क्राउन चक्र में, ये हुँ, जो बच्चे का सबसे बाद में बढ़ता है, हुँ, इधर फूटते हो, पीठ पे पीछे, और यहाँ, और फिर उसे ड्रमिंग करके रैफल से उसको पूरी तरह से सजो के सेव करके बंद। ये वाह! बेसिक, इसे कहते हैं ब्यूटीफुल सोल, रिचुअल। ब्यूटीफुल सोल पोर्शन रिट्रीवल इसे बोलते हैं। और फिर उसकी ऑरा को आपने पूरा सील कर दिया उसको। सील कर दिया। ऐसे भी हम बंद कर देते हैं जैसे हम करते हैं उसमें, है हुँ, ना, हुँ, हम हुँ, बंद करते हैं। शामनिज्म में है कि आपने सेज से किया या अगरबत्ती, जो हुँ, है उसे किया, हुँ, क्या किया। तो ये इस तरह से रिचुअल है। तो वही उसके पेरेंट के साथ हुआ। तो मैं जब जर्नी पे गई तो पहले ये आई यू रेडी फॉर दिस, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं वो भी ठीक है, हुँ, बट हाँ मैं रेडी हूँ। तो ये नहीं होता कि भाई अभी हो जाएगी हीलिंग, हुँ, आपने आज बात की है, सकता है। तो जब सोल रेडी हो गई, हुँ, आप रेडी हैं, हाँ, तो फिर आप जर्नी पे निकलते हैं। हुँ, और फिर आप उनसे जो भी बातचीत, जो भी आपको आदेश आते हैं, बातचीत आती है, जो भी मैसेजेस आते हैं, और कई बार हीलिंग की जरूरत होती है, दोनों की, इंसान की, दोनों के आसपास हीलिंग की जरूरत होती है, हुँ, 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 आदान प्रदान जो जैसे वो चल रहा होता है, वो करके, हील करके, या उसके सोल पोर्शन को लाके कि हाँ अब मैं वापस आने तैयार के हूँ, लिए रेडी हूँ। और जितना तैयार हूँ, है ना, हुँ, वो फिर आके आप उसे डाल। उसी तरह से पार एनिमल कहते हैं कि जब अचानक कुछ ऐसा हो जाए, आप में हिम्मत ना हो, आप में रोना ही आए जा रहा है, हुँ, और ऐसे लगे तुम होपलेस हो गए, पारलेस हो गए, तो इसका मतलब माना कि आपका पार एनिमल शायद आपको छोड़ के चला गया है, कोई भी कारण से। फिर आप जर्नी करते हैं, नीचे जाते लोअर हैं, उस ग्राउंड में। नाम से लोअर लोअर वर्ल्ड में जाते हैं, और ओके। फिर ढूंढते हैं, वो एक तरीका है। फिर हुँ, आप उसे ढूंढते हैं, हुँ, राइट। फिर आपकी उसकी साइटिंग्स होती है, उससे पूछते हैं कि क्या आप इसके पार्ट एनिमल हैं? हुँ, तो हुँ, कई हुँ, बार वो मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं हैं। वहां सिर्फ एनिमल्स तक होता है, और वनस्पति और ये सब चीजें, वहां इंसान नहीं होते हैं, राइट। हुँ, लोअर वर्ल्ड में इंसान से नीचे का हो रहा है। जी। और फिर जो बताते हैं कि हाँ मैं हूं, तो तुम क्या साथ आना चाहते हो? और फिर उसके साथ उसकी सारी बातें करके कि ये है वो है, और उसको फिर जाके पार एनिमल को भी रिट्रीव करते हैं। ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल। ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकलती है कि तुम कहते हो वाओ। और जब लोग क्लासरूम में सीख रहे होते, तो वो पहली बार जब मैंने भी किया तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने कभी सोचा नहीं था। और एक्चुअली जब तुम गूगल भी करो कि ओके फाइन, अभी मेरे पास वुल्फ पार एनिमल आ गया, तो व्हाट डज इट मीन, पार एनिमल, स्पिरिट, यू नो। राइट। और वो जो करेक्टरिस्टिक्स बताता है, तुम ऐसे कहते हो एक्चुअली इस चीज की मुझे जरूरत थी, सोचा ही नहीं था, हुँ, आउट ऑफ ब्लू। बट लेकिन जो एनिमल्स में पावर है वही, हुँ, इंसेक्ट्स में नहीं। हुँ, यू अंडरस्टैंड, जो पावर होगा वही पावर देगा ना। जी, जी। सो वैसे, सो इट्स सो अमेजिंग। और फिर वापस आके आप अपनी जिंदगी पूरी तरह से वैसे ही जीता है एक शामन प्रॉपर विधि विधान में होता है, उसका मिनिमम एक प्रैक्टिस है, मिनिमम 7 years माना जाता है उसकी प्रैक्टिस हो। तो किस तरह की तभी उसे, प्रैक्टिस आपने की है? किस तरह यही के यही जो जर्न ओके। तो ये मैंने टूल्स? तो कोर्स किया, हुँ, और मैंने फैकल्टी ऑफ फाउंडेशन ऑफ शैमानिक स्टडी माइकल हार्नर से हुँ, किया था 2013 में बाली में जाकर। वॉव! तो वहां पे केविन टर्नर थे हमारे, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया था। मेंटोर जिसे तुम ऐसे करके देखते हो, और
कुछ ज्यादा नहीं, बस एक पेपर है और बस बाकी वो सिर्फ काम करा रहा है। मतलब तुम्हें एक थ्योरी दी और अभी प्रैक्टिस, थ्योरी दी और अभी करो, हम्म पूछो प्रश्न, पूछो गलती हुई नहीं हुई अभी करो, गो गो टू जर्नी 1 2 3 गो टू जर्नी। और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हमें लगा ओ माय गॉड, कई बार हमें ऐसा लगा इतना आसान था। हम्म। क्योंकि ये तो मेंटोर के ऊपर है ना कि मेंटोर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे। उनकी और मेंटोर, एनर्जी, उनकी कॉन्शियसनेस में ही वैसे ही चीजें खुलने लग जाती होंगी। और वही मेरे साथ, मुझे जब मैं सिखाती हूँ तो इतना सरल करके सिखाओ कि दूसरे को लगे अरे ये तो मैं खुद जा सकती, तो जाओ ना, जाओ। उस एक से बात करो ना, राइट, है राइट। ना, उसके आशीर्वाद लो और वैसी जर्नी में निकल जाओ। तो इसमें दो तीन जो चीजें हैं जो रही, वो एक सोल रिट्रीवल, एक होता है सोल हम्म पोर्शन रिट्रीवल, फिर पावर एनिमल रिट्रीवल, फिर उसमें एक्सट्रैक्शंस होती हैं, कोई जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, हम्म हम्म। फिर आपकी एंसेस्टर हीलिंग के लिए होता है, फिर उसमें आपके साइकोपॉम्प होता है जो, जिन्हें हम कहते हैं आत्माएं जो फंस जाती हैं बीच में, जैसे सुसाइड के केस हैं या मर्डर के हैं या अचानक एक्सीडेंट के हैं और वो अटक गई, जो नहीं जाना चाहती उस पार। राइट। सो उनके मैसेजेस और उनको पहुंचाना। वाओ, इट्स अ डीप वर्क। और या इट इज। आप और किस तुम्हें तरह हमेशा, हाँ, आप हाँ किस बोलिए। आप किस तरह के टूल्स यूज करते हैं इसमें? टूल्स मतलब, टूल्स मतलब, ड्रम्स और हाँ सेजेस? ड्रम्स, ऐसा ड्रम्स है जो तुम्हें वो एक रिदम देता है और थीटा सेट पे चले जाता है, जैसे ओके। बेल्स हैं, राइट। बेल्स है, जैसे हम चाइम्स लगाते हैं वो तो अर्थ और फायर उसके साथ, विंड एयर के उसके साथ। साथ होता है, या और जो ड्रम्स है वो आपको ग्राउंड करती हैं और एक रिदम बनाती हैं, डग 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 डग, तो जैसे आप टन अपनी टन टन। प्रैक्टिस में, मतलब जब आप प्रैक्टिस में क्लाइंट मैं करती हूँ, और या मेरे क्लाइंट में पास भी? आज ये अच्छा। रैटलर, ये तो छोटा वाला रखा हुआ है, हाँ। मैं अपनी प्रैक्टिस में अगर है, ओके, और क्लाइंट्स के साथ भी आप ड्रम्स वगैरह वो सब यूज अगर करते जरूरत हैं? पड़े तो, जरूरत पड़े, ज्यादातर वर्कशॉप्स में करती हूँ, ड्रम रखा होता है और कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ इसमें जरूरत है, अदरवाइज वाओ, जाता है पर ब्यूटीफुल। ड्रम का। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिविनेशंस आती हैं, रिसीविंग मैसेजेस उसमें आते हैं। जब आप अपनी प्रैक्टिस आपने करते हो तब आपके जब पास? प्रैक्टिस करते हैं तो, जब मैं प्रैक्टिस रोजमर्रा की जो आप रूटीन प्रैक्टिस कह रहे हैं या कौन सी प्रैक्टिस, आप जो जो कह एक रहे हैं कि क्लाइंट्स के साथ हूँ, एक तो मैं क्लाइंट्स के साथ हूँ जो केसेस के हिसाब से ये चीजें हो रही हैं, जो आप डिविनेशन मैसेजेस कह रहे हो कि आपके पास अपने आप ही तो वो जो प्रेनोमिन। केसेस के हिसाब से है कि अच्छा। भाई कोई मैसेज लेना है तो मैं फिर उस जर्नी में जाऊंगी और फिर उस चीज से बात करूंगी और उससे मैसेज लूंगी, वाह, वाह। राइट। और सो एज अ क्लाइंट अगर मैं समझना चाहूँ कि क्या मुझे ज़रूरत है शमानिक हीलिंग की, सो हाउ वुड आई अंडरस्टैंड दैट कि मुझे अच्छा, जाना एक चीज चाहिए? ये समझिए, ये चीज समझिए कि इसमें जरूरत, इसमें या तो एक एक हमेशा आह का और औ का एलिमेंट रहता है शैमनिज्म में, क्योंकि एक तो यहाँ पे कोई गुरु प्रथा नहीं है, जी। राइट, इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। हुँ। आपका उससे स्पिरिट वर्ल्ड से अपना नाता है, आपका अपना पावर एनिमल है, जी, जी। राइट, आपके अपने स्पिरिट गाइड्स हैं और आप बाहर आते हैं। तो इसमें अगर आपको चाहत है हुँ। तो आदेश आ जाएगा कि यार ये क्या है। ओके, ओके। सो यू समहाउ ट्राई टू गेट द साइंस, ये मतलब अगर आपको ये वीडियो मिला है यूट्यूब पे तो इट्स अ साइन दैट यू प्रोबब्ली नीड टू एक्सप्लोर शमानिक हीलिंग, सो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। So with me, it was like such a crazy thing happened. I had never heard of this word, हुँ, even though मैंने सन 2000 में आउट ऑफ इंटरेस्ट, हुँ, साथ में पड़ोस में रेकी हीलिंग हो रही थी और कभी सुना ही नहीं था रेकी क्या है, जबकि घर में पूरा वातावरण था साइलेंस वाला, हुँ, कोई फोर्स नहीं था पर साइलेंस था। साइलेंस का बहुत ज्यादा एक रहा कि भाई साइलेंस में अपने आप से बात करो ना, वो हुँ, वाली चीज, हुँ, सोच को बंद कर दो, पंखा बंद हो रहा है तो पंखा, लाइट चली जाती थी तो पंखा जैसे ही बंद हुआ मम्मी ने कहना अब सोच भी नहीं आनी चाहिए, तो हम थोड़ी देर, अब हम सोच लें, नहीं अभी लाइट नहीं आई, ओके, तो मतलब सोच को भी वो कर दो कि उन्होंने खेल खेल में हमें कई चीजें इंट्रोड्यूस की थी जो मुझे नहीं पता थी। हुँ, बट एनीवे रेकी मैंने देखी, मैंने ये तो बहुत बढ़िया एनर्जी गेम, आप डिस्टेंट हीलिंग भी दे रहे हो, हुँ, 3 4 दिन का था एंड ऑल, फिर सेकंड डिग्री की और चक्रास भी समझा और ये सब, फिर धीरे धीरे प्राणिक हुआ और ऐसे करके प्राणिक चक्रास पे आ गया और हीलिंग आई और उसको क्लिनजिंग है और हुँ, साथ करते गए और करते रहे। मैं अपना मस्ती में हूँ और कोई अभी हीलर नहीं बनी, मैंने कुछ करने के लिए, मैंने एक प्रोफेशनल लाने के लिए नहीं करना था, हुँ, मेरा अपना बिजनेस चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, हुँ, लेकिन ये आउट ऑफ क्यूरोसिटी, हुँ, हुँ, यार ये भी है, अच्छा इसको ये बोलते हैं, अच्छा इसको ये वाली चीज है, सो इंटरेस्टिंग, राइट, हुँ, टैरो भी सीख लिए, क्रिस्टल्स भी सीख लिया, अरे यार मजा आ गया, हुँ, अच्छा यार बताया अपने कार्ड भी खोल लिया और ये नहीं था अपने नहीं खोलते, अरे क्लियर किया, खोल लिया, अरे यार ये तो पता चल गया, यू नो दैट काइंड ऑफ आउट ऑफ फन। हुँ, सो हुँ, और मैं एक रेस्टोरेंट में बैठी हूँ हुँ, कनॉट प्लेस में अपनी फ्रेंड के साथ, और
हम दोनों बैठे हैं और यहाँ पे कुछ कोई सिक्के लेकर कोई बैठे हुए पुराने एंटीक्स, और मैंने ऐसे देखा, हम्म मैंने कहा ये क्या सिक्के, एक्सक्यूज मी। तो कहते हैं हाँ, और अगर आप बता दो कौन सा सिक्का, एक भी बता दो तो इनाम मिलेगा। तो खैर हम हंस पड़े, और तब तक एक कोई आते हैं, फॉरेनर आते हैं, उनके साथ बैठे, और वो सिक्कों की बातें हो रही हैं, कुछ हो रहा है, वो सीनियर हैं कोई, और बात करते हुए मैंने कहा अच्छा ये सिक्का ये वाला होगा। उन्होंने ऐसे मुझे पकड़ाया और मैंने कहा ये सिक्का तो ये वाला होगा। हम्म हाँ? उन्होंने 10 रुपए की गड्डी निकाली, एक नोट दिया 10 रुपए का, हाजिर वाह, इनाम में। अब बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए, हम्म हाँ, और वो मुझे नोट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता जो फॉरेनर है, बड़े खूबसूरत तेज उनके, और जैसे ही, हटने लगी, मैं बिल देखे थे, आई यू अ शामन, आई सेड व्हाट इज दैट, हम्म he said the way you felt the coin and you said it, और मैंने ऐसे, मुझे कुछ नहीं याद, मैं अब सोच रही हूँ कि ऐसे हुआ होगा, मैंने ऐसे देखा, हाथ ऐसे किया, और मैंने आंख बंद की और मैंने उन्हें बताया, और मैं खूब जोरों से हंसी, ऐसे ओह 10 रुपए इनाम मिल गया भाई, चलो हो गया, मतलब उस तरह से। ओके राइट जी। तो कह के गए, मैंने कहा व्हाट इज अ चामन, और मैं ऐसे, मैंने कहा अच्छा लेट मी नो व्हाट इज इट, हम्म और मैं बाहर निकलने लगी, तब तक वो चले गए, खत्म हो हम्म गई बात। हम्म 1 हफ्ते के अंदर एक फ्रेंड डिनर पे बुलाते हैं, हम्म अभी ऑरोविल से आए, सेम देखने में, हम्म लंबे ऊंचे बाल नहीं, शाइनिंग, जैसे वो कहते हैं, हम्म बॉल्ड, हम्म एंड खाना खाते हुए कोई बात हुई, ही लुक्ड एट मी, ही सेड आर यू अ shaman, I हम्म said excuse me sir, what is shaman, हम्म he said if you have to know you'll know it, I said but what is it, हम्म क्या, अच्छा क्या करती हूँ, मैंने बताया, फिर से कहते ये क्रिस्टल भी है, इसमें वनस्पति भी है, और ऐसे करके वो ऑरोविल में रहते थे, हम्म खत्म हो गई। 1 महीना नहीं बीता, किसी ने कहा एक नई मोडालिटी है शामनिज्म, हम्म तो अटेंड करना। मैंने कहा अच्छा, ये तो वर्ड मैंने सुना है। मैं अटेंड करने गई, ठीक है, 2 दिन का हुआ, तभी मैं गूगल कर रही हूँ, लेट मी नो मोर अबाउट इट, एंड दिस इज 2013, एंड हम्म आई हर्ड कि बाली में शामनिज्म, माइकल हार्नर के एफएसएस का हो रहा है। हम्म मैं टिकट खरीदती हूँ, मैं वहां पहुंच देती हूँ, कहती हूँ मैं वहां आके पैसे दूंगी, उनको ईमेल लिखा, उनका ठीक है जी। आई हम्म वॉज द फर्स्ट इंडियन जो हम्म वहां पर, ऑन द ओनली इंडियन वहां पर थी। हम्म 20 लोग, 22 कंट्रीज के लोग थे, हम कोई 30-32, हम्म और द फर्स्ट थी, उन्होंने कहा फर्स्ट हुआ, हम्म और मुझे लगा ओह ये है शामनिज्म, भाई मजा आ गया। और उससे पहले ही हम्म क्योंकि ये बात हो रही है, हम्म मैं जिस होटल में रह रही हूँ, और उस होटल में मुझे छोटा कमरा मैंने लेना, और उन्होंने कहा नहीं वहां कुछ खराब हो गया, आप मैम आपको ये बड़ा कमरा दे रहे हैं। मैंने कहा बट मेरा रेट होता है, हाँ हाँ मैम कुछ नहीं, बहुत बड़ा सा, जिसमें से सीढ़ियां भी ऊपर जा रही है, और मैं अंदर घुस रही हूँ, सडनली फील हुआ कोई आ रहा है। हम्म I said, भाई तुम कौन हो, हम्म है एक फीलिंग हुई जैसे कोई, ऐसे भाई तुम कौन हो। तो मैंने, अच्छा ये बचपन से था कि भूत भूत से नहीं डरते हमारे घर में, हम कहते, मेरे पापा कहते थे भूत का तो इलाज है इंसानों से खबरदार रहना जरा। सो भूत आए ना, कभी ऐसी फीलिंग है, पूछ लिया करो उससे भी तुम क्यों आए हो, ये बचपन से चल रहा था हमारे। हमें ब्यूटीफुल ऐसे लगा कोई आ रहे हैं, हमने कहा भाई, एक ऐसे लगा एक लेडी जैसी, कोई फेमिनिन एनर्जी। हाँ मैंने कहा जी आप देखिए, मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आई, मेरा ना कुंडा या कुछ खराब था, मुझे ये जगह दे दी, मुझे कुछ पता नहीं है, आप अपना रहो, मैं अपना रहती हूँ, ठीक है, हाँ मैंने तो यहाँ 15 दिन रहना है, और आप अपना रहो, घूमो फिरो, मैं अपना घूमती फिरती हूँ, ये एरिया मेरा हो जाए, या मैं ऐसे बात कर रही हूँ, मैं बचपन से ऐसी ही बात करती हूँ जिनसे भी, जो भी मेरे, और मैंने, और मेरे इतने दिन निकल गए आराम से जी। जब मैं क्लास में गई तो मैंने बताया, तो उन्होंने फील किया, और उन्होंने देखा, ओहो दिस इज द लेडी एंड दिस इज व्हाट इट इज, एंड सर अच्छा, कहते तूने कुछ करना है, मैंने कहा नहीं, मैं तो रात को कैंडल जला के सो जाती हूँ, मैंने उसकी बाउंड्रीज बना दी है, आप उधर रहो, मैं इधर रह रही हूँ, ठीक है जी। wow सर wow this is सो powerful हिलेरियस, आई डोंट नो, मतलब ये कुछ, कहते हैं ना कई बार तुम इनोसेंस में चीजें हो रही होती हैं, तो हम्म आराम से सब कुछ है, मैं प्रणाम किया, थैंक यू आप मुझे रहने दे रहे हो, थैंक यू, हाँ, हम्म और ये और वो, भाई डराना वराना नहीं, मैं तो विद्या करने आई हूँ, हो गया। अगले साल फिर से जाती हूँ, तो मैं, मुझे पूछते हैं हैव यू बीन टू बाली बिफोर, आई सेड या एंड आई वाज स्टेइंग इन दैट होटल। तो उन्होंने कहा कि अरे वो होटल बंद हो गया मैम, इट्स क्लोज, आई सेड व्हाई, बिकॉज़ इट वाज फाउंड हॉन्टेड, आई सेड ओह, इसका मतलब सच में सारा। nice तो nice मुझे मतलब, यू अंडरस्टैंड, तो शामनिज्म में कहाँ घुसी, और उसके बाद इतने किस्से हुए, और मैं कहूँ कि भाई मैं उसे अट्रैक्ट कर रही थी, नहीं कर रही थी, नहीं जी, मेरा वो काम नहीं है, लेकिन आया तो उसको कैसे सीख कर आई, वो कहते तुम सीख लेते हो तो फिर वो वैसे ही केसेस आने लगते हैं। फिर उसके बाद हुआ कि भाई ठीक है, हो गया, तुमने क्रॉस ओवर्स कराने हैं, हम्म बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हुए। तो एक क्लाइंट को किस तरह का आउटकम वो एक्सपेक्ट कर सकता है इस एक तो सेशन से एम्पावर्ड, इस एक्चुअली शमानिक, जब आप शामनिज्म सीखते हो, तो सबसे पहले तो हॉलो होना सीख लेते हो,
हम्म। इंटेंट का मायना समझ लेते हो। हॉलो और होना। ट्रस्ट, हॉलो मतलब खाली, एज अ हॉलो रीड। जब आप शामन शामन बन रहे हैं या शामनिज्म कर रहे हैं, आप खुद अपने आप को शामन नहीं बुलाते, दूसरे बोलते हैं। हॉलो मतलब आप जब बैठ रहे हैं उसमें, हम्म। भाई शामनिज्म सीखने कोई शामन आएगा अगर वो आ रहा है, तो पहले तो वो ये सिखाता है कि आप जब स्पिरिट वर्ल्ड में जा रहे हैं या किसी दूसरे ऑल्टरनेट रियलिटी में जा रहे हैं, हम्म। सो आप बिल्कुल खाली होके जाइए, पुराना बर्डन या सोच विचार के साथ मत जाइए। बट जो बंदा जिसने पहले कभी हीलिंग नहीं कराई या जिसको आप हीलिंग हीलिंग नहीं, की बात कर रहे हैं या वो जो कोर्स की बात कर रहे हो? मैं क्लाइंट की बात कर रही हूँ कि वो ओके, किस ठीक तरह है। का आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या वो अ, एम्पावर्ड, क्लैरिटी, हम्म। एम्पावर्ड, फुलफिलमेंट, बिकॉज शामनिज्म सारा सोल पे है, हम्म। स्पिरिचुअल जर्नी है वो। तो क्या उससे रियल लाइफ में भी कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे टोटल, आप अबंडेंस, कॉन्फिडेंस, द वे यू टोटली कैरी योरसेल्फ, या आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, परसेप्शन चेंज हो जाती है, पर्सपेक्टिव नजरिया बदलने लगता है, हम्म। एक्सेप्टेंस आ जाती है, फुलफिलमेंट होती है उससे क्लाइंट को। यहाँ पे ओके। मानना ही नहीं, जानने लगते हो कि ये कुछ हुआ चेंज। बहुत हम्म। सटल चेंज होता है, लेकिन पूर्ण करने के लिए चेंज होता है। अगर वो चीज जैसे वही है ना, रिट्रीवल्स हैं यहाँ पर, हम्म। उन चीजों को रिट्रीव करना चाहते हो कि मैं कहीं रास्ता खो गई, भटक हम्म। गई, हम्म। तो उसी रास्ते पे जाना है तो भी ठीक है, और अगर नहीं तो दूसरा रास्ता कौन सा है, चलो वहां निकलते हैं। सो एक तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको क्या बिल्कुल। चॉइस करनी है। अगर आपके पास कोई हॉलोनेस है, मतलब आपका कोई पार्ट वॉइड है, चला गया है, कोई वॉइड है, वॉइड है। तो आप उसको हील कर सकते हैं या उसके थ्रू। अगर आपको कहीं डिसएम्पावर्ड फील हो रहा है, तो आप अपने स्पिरिट एनिमल से दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं उसके एम्पावरमेंट थ्रू। आती है। या आपकी लाइफ से कोई चला गया है एंड यू आर अनएबल टू लेट देम गो, तो वहां भी या आपको शमानिक हीलिंग। एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो हाँ। एक्सेप्टेंस आ जाती है। और आप मैसेज रिट्रीव कर सकते हो। एंड आई थिंक अगर आप ऑल्टरनेट रियलिटीज यहाँ से जा सकते हो, तो चॉइस मेकिंग के टाइम पे इट्स वेरी यूजफुल इफ यू डू अ शमानिक हीलिंग, बिकॉज इट कैन हेल्प यू एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस इन डिफरेंट टोटली, रियलिटीज। टोटली। क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक ईगो ओवर हियर, देयर वहां पे आप क्रिस्टल्स पे भी काम कर रहे हैं, वहां आप प्लांट से भी कर रहे हैं, वहां पे अगर रेकी भी आ रहा है, वो चक्रा पे भी, वो कह रहे हैं भाई क्योंकि पुराना है ना, उसके हम्म। बाद आया है। अब बाकी जो आ रहे हैं वो 20th सेंचुरी में आए हैं, राइट। 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 ये 1 लाख साल पुरानी चीज है, आज भी ट्राइबल्स इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम्म। उस ट्रांस में जा रहे हैं, पूरा मुकुट पहनेंगे, अपनी ड्रेस पहनते हैं, अपना सब कुछ फेदर्स लगाते हैं और पूरा रिचुअल ढूंढ ढूंढ करके, एंड देन दे गो, फिर सारा उतारते हैं, फिर आराम से बैठते हैं, यू नो। ब्यूटिफुल। राइट। सो राइट। सो वो उस रूप में जाते हैं, रोल में जाते हैं, और फिर डी रोल होते हैं, वो मर्ज होते हैं, और फिर देन दे डी कम बैक मर्ज टू द। होते हैं, दे कम बैक। चाहे उसके बाद वो लोहार हो, चाहे हम्म। कारपेंटर हो, चाहे वो कुछ टीचर हो, बट उस हम्म। रोल में जाता है और फिर वापस आता है, क्योंकि वो तो जर्नी है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि अगर एक इंसान है, उसको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, उसको एंग्जायटी का प्रॉब्लम है, उसको कुछ खालीपन महसूस हो रहा है, उसको लग रहा है कि लाइफ कहीं स्टक हो गई है, या अगर उसको लग रहा है कि वो कुछ स्टेप लेना चाहता है बट उसको आगे रास्ता नहीं पता चल रहा कि किस डायरेक्शन में जाना है, या अगर वो स्टक है और उसको यही नहीं पता कि ब्लॉकर क्या है, तो शमानिक हीलिंग कैन डेफिनेटली हेल्प दैट पर्सन। क्योंकि एक टोटली, बारी आप एक शमानिक हीलर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो एक तो वो आपका ऑरा रीड कर पाएंगे, दूसरा दे कैन ट्रैवल एंड गेट द मैसेजेस फॉर यू। वंस यू रिसीव द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड, यू कैन फ्री फ्लो मूव इन योर लाइफ, राइट? विद मोर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। एंड अंडरस्टैंडिंग। हाईएस्ट फॉर्म इज अंडरस्टैंडिंग, यशिका। एक हम्म। होता है मानना कि भाई हो गया, एक है कि मुझे ओके, ये कहाँ काम कर रहा है और किस तरह से है, और यहाँ पे प्रश्न नहीं कि भाई, क्योंकि हर एक की जर्नी अपनी अलग है, येट इसका जो तरीका है वो आपको पूर्ण बनाने के लिए है। आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे, जैसे अब जहाँ डेथ है, यहाँ पे एक बहुत नेचुरल तरीके से डेथ को लिया जाता है, राइट, कि आप जर्नी में एक स्टेज पे थे, अब आप आगे सेलिब्रेशंस ऑफ चले डेथ, गए। यहाँ इतनी डेथ ऑफ जर्नी थी, अब आप एनीथिंग। आगे निकल गए। या तो वो डेथ ऑफ रिलेशनशिप हुआ है, तो डेथ ऑफ रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हम्म। राइट। यहाँ पे उन उन स्वरों को समझने की अंडरस्टैंडिंग आती है, जो एक स्वर, हम्म। जैसे साउंड बात है, स्वर है, हम्म। चिड़ियों के, हर चीज के जो स्वर हैं, हम्म। साउंड्स ऑफ साइलेंस भी, जो हम्म। साइलेंस का स्वर है, और जो दो स्वरों के बीच का जो अंतराल है, क्योंकि ऑल्टरनेट रियलिटीज पे काम हो रहा है, तो दो स्वरों के राइट। बीच में जो अंतराल है, उसको भी समझने लगते हैं। You kind of travel into that, gap. शून्य। शून्य, and all the information lies there. Oh my god. तो इट्स ब्रेथ वर्क भी इधर है, हाँ। ब्रीदिंग है ना, राइट। पांच तत्व भी इधर है, राइट। राइट।
यहाँ पे पेड़ भी है, हम्म। यहाँ पे घास भी है, यहाँ फल भी है, हर बीज भी है। तो एज अ हीलर आपने आज तक कौन सी ऐसी हीलिंग है जो आपको मतलब छू गई हो, जो अभी तक याद हो, आपने विटनेस करी हो या फैसिलिटेट करी हो कि ओ माय गॉड ये ऐसा भी हो सकता है? व्हाट वाज योर आहा मोमेंट देयर? एक हीलिंग एक है, और एक जो मुझे समझ आया और वो चीज सामने आई, राइट, हाँ। मतलब कि वो हुआ साइकोपॉम की तरह उसको आगे करना था। हम्म। सो मैं कुछ साल पहले एक ट्रिप पे गई हुई थी, और मेरे जो कमरा पूरा वो था, पैलेस जो हो गए हैं कन्वर्ट हो गए होटल्स में, सो हम्म। वन ऑफ दोज प्लेसेस। हम्म। और मैं बहुत सुंदर कमरा, बिल्कुल हम्म। वो जैसे हम जो देखते हैं पिक्चरों में, हम्म। राजस जीवन वाला, हम्म। राइट। और बहुत सुंदर, और मैं रात को सो रही हूँ, ठक 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 आवाज आ रही है, हम्म। जैसे कोई खटखटा रहा है। मैंने कहा आवाज क्यों आ रही है? तो मेरे साथ अ, मेरे हस्बैंड थे, तो वो लेटे, वो कहते कोई आवाज कुछ नहीं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आवाज आ रही है। तो उसके बाद फिर ठक 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 हुआ। हम्म। मैंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ है, कुछ हुआ है, बट एनीवेज सुबह जल्दी उठ गई मैं। उठे तो वॉक पे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कुछ हुआ है, राइट। तो मैंने कहा मुझे देखो, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई आदमी नजर आ रहा है तेरे में। मैंने कहा आप वॉक पे निकलो, मैं जरा जाती हूँ। हम्म। मैं कमरे में जाती हूँ, और मैं यूजली अपने साथ दिया ले लेती हूँ। हम्म। हम्म, मैं नहाई और मैंने दिया और माचिस जलाई, और ठक करके सामने आदमी, हम्म। जो ऐसे पोजेस्ड। सामने, हम्म। जो भी। मैंने कहा बताइए आप कौन है, क्या है, सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। तो किस लिए आए हैं? क्रॉस ओवर करा दो। तू जानती है। वाओ। मैंने कहा क्रॉस ओवर करा दूंगी, प्रूफ छोड़ के जाओ कि आप जो बता रहे हो वो ठीक है। हम्म। तो कहते हैं इसी, ये जो होटल है, जो ये महल था, इसके नीचे एक खाना है, वहां पे दो शेर हैं जिनका भूसा भरा हुआ है, और जी। फोटो भी है, सर्टिफिकेट है, कुछ लगा हुआ है वहां पे, शेरों का। हाँ। शेर और दो जानवर उन्होंने और बताए, हम्म। उनके भूसे में, वो शीशे के पीछे हैं, हम्म। है भूसा भरा हुआ है। और मैंने कहा अच्छा, तो ओके। मैं सुबह नाश्ते में चली और मैंने उन्हें विदा किया, सब कुछ जो करना था, वो जो जर्नी करके। हम्म। और जब मैं अ, नाश्ते में गई, तो मैंने उनसे पूछा यहाँ कोई तहखाना है? तो वो कहते हैं आप राजा साहब के गेस्ट हैं क्या? यहाँ तो साल में एक बार खुलता है, या उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट? मैंने कहा नहीं गेस्ट नहीं, मैंने मुझे पता चला है। कहते मैं पूछ कर आता हूँ, हम्म। रेस्टोरेंट के जो मैनेजर, हम्म। पूछ कर आए। हम्म। मैंने कहा इजाजत दो, मुझे सिर्फ तहखाना देखना है। हम्म। हाँ, हम्म। खैर एनीवे कहाँ से इजाजत मिल गई मुझे। हम्म। और मैं पीछे गई हूँ, नीचे जाती हूँ, उधर है, और वो सारे जैसे चादरें पड़ी हुई हैं, फर्नीचर है, ये सारा कुछ जो भी रखा हुआ है, उसके अंदर एक शीशा, और उसमें शेर है जो भूसा भरा हुआ है, और फोटो भी है कि सर्टिफिकेट जो भी होगा उनका, जो भी, और वो बंदूक लेके खड़े जो भी है। मैंने कहा ये, कहते हाँ ये है, अब ये देना है, गवर्नमेंट ने जो भी अपना वो शुरू किया हुआ है देने का, और हम्म। यहाँ रखे हैं, वो कलेक्शन हो जाएगा, हो रहा है उनका हम्म। सारा। उसने एग्जैक्टली मुझे बताया था। हुँ? और जब मैं बिल देने हम लोग रिसेप्शन पे खड़े हुए, तो एक फ़ोटो दिखाई दी। मैंने कहा ये कौन है? हम्म। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया था मैं 35 साल का था और राजकुमार था, और किस वजह से मौत हुई ये सब कुछ बताया था। तो वो हम्म। फिर मैं जर्नी करके मैंने जो करना था मैंने किया। हम्म। और मैंने जब पूछा, मैंने कहा ये कौन है? हम्म। कहते ये हमारे राजकुमार थे और 35 साल में गुज़र गए थे। आई वाज़ लाइक, वाओ। सो तो वो जर्नी तो मेरा ये होता था कि मुझे बताओ इन लोगों से, तो मुझे बताओ, पहले कुछ बताओ कि भाई प्रूफ छोड़ के जाओ कि ये तुम कर रहे हो, ये हाँ। मेरे से करा, इस तरह से। सो ऐसे ऐसे कुछ, ऐसे ये हुआ जर्नी। फिर एक हीलर नहीं, कॉन्टैक्ट हीलर्स भी बहुत आ जाते हैं, हम्म। और कई डॉक्टर्स भी, जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट, वो भी कई बार, क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस होती है, हम्म। आपकी मेडिकल अपना चल रहा होता है, वो भी कई बार रेफर कर देते हैं। हम्म। सो एक हीलर है, बॉम्बे के ही हैं, बहुत उनका नाम, तो उन्होंने रेफरेंस से आए कि विभा मुझे मदद चाहिए, और ये एनीवे, हम्म। तो वो पता चला कि कोई एंसेस्ट्रल से चीजें आ रही हैं, हम्म। और वो सिर्फ जर्नी से। हम्म। आप थीटा में जाके भी आप कर लेते हो, ये जर्नी से हो रहा है, मैं टक 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 इधर इधर इधर। और हमने फिर उसकी, उनकी सेकंड थर्ड उसमें उनकी क्रॉस ओवर कराया, जो चीजें होनी थी, हम्म। और उनको हमने क्रॉस किया, क्योंकि शामनिज्म में आप ब्रिज बनते हो, जी। जी। आप खुद नहीं करते, आप स्पिरिट के साथ ये हाथ वो उसके हाथ को देते हो और आगे बढ़ाते हो। यू आर हम्म। ए गाइड, यू आर वर्किंग विद द स्पिरिट गाइड्स।
राइट। राइट? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर अ ब्रिज। सो आप उधर गए और उसको आपने किया, वो चीजें जो क्लियर करनी थी वो इधर से इधर, जब वो रेडी हुए, आर यू रेडी? बिकॉज वो एकदम जिंदगी चेंज कर देगा। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा, या अवतार, जो अवतार पहली मूवी है वो शामन है, तभी उसके अपने पार एनिमल्स होते हैं, पूंछ निकल रही है, उनके रूप बदल रहा है, वो अंडरवर्ल्ड जा रहा है, सबका राइट। शामन, वो सारे बैठ के कनोइंग, वो सारे के सारे, वो एक पेड़ वो है पूरा जिसकी ट्राइबल पूजा, लाइफ है, राइट। वो शामन है, दोज आर शामन्स। नाइस। ओके, नाइस। और फिर उसका वो पूरा उसका क्रॉसओवर किया, देन रिसीव्ड अ मैसेज कि हाँ वो चीजें पूरी हो गई। टाइम लगता है, क्योंकि हम्म। हर चीज का बीज रखते हो तो बीज को अंकुरित होने में टाइम लगता है। तो रिचुअल्स होते हैं, तो जैसे फायर रिचुअल्स हैं, वाटर रिचुअल्स हैं, हम्म। और फिर ग्राउंड के जहाँ पे हम बीज को, जो एक सोच को, बीज को समझते हैं, और फिर हम हम्म। उसे बीच में जब आप प्लांट करते हैं तो वो अंकुरित होते हैं, हम्म। जैसे परिपक्व होता है। जैसे बड़े खूबसूरत, एक किसी से मैंने बात की तो मैंने कहा कि भाई, एक फल मेरे से पूछते कब पक जाता है, हम्म। तो मैंने कहा आप ही बताइए। हम्म। कहता है जब उसका जो ऑर्गेनिक वे से, हम्म। जब उसका एक फल का हर बीज इतना परिपक्व हो कि वो दूसरे पेड़ को जन्म दे सके, तब वो बीज, वो फल पकता है। वाओ। वाओ, इतना डीप मैंने कभी नहीं देखा। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। एक चीज मैं यहाँ आपसे पूछना चाह रही थी कि शमानिक हीलिंग एज अ क्लाइंट क्या रिमोट करा सकते हैं या इज इट बेस्ट इन पर्सन? नहीं नहीं, रिमोट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। और किसी तरह की कोई रिस्क या डूज एंड डोंट्स एज अ क्लाइंट हमें पता होने चाहिए अगर हम शमानिक हीलिंग के लिए जाएं तो? वो उसी टाइम जब जब कोई क्लाइंट कांटेक्ट करता है, हम्म। बेसिकली सोल जर्नीज पे, मैं जैसे मैंने बोला कि आपके वॉइड्स हैं, आप पूरा कंप्लीट फील नहीं कर रहे, यू फील यू आर लॉस्ट, यू फील देयर इज एंसेस्ट्रल थिंग व्हिच इज लाइक रीजंस यू डोंट अंडरस्टैंड, देयर आर पैटर्न्स इन योर लाइफ, हम्म। एंड यू फील दैट दैट कंप्लीटनेस नहीं है, और तुम जिंदगी में कोई भी कुछ भी खुशी नहीं बची और समझ नहीं आ रहा, यू हम्म। लॉस्ट योर वे। हम्म। 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 सो उसमें डूज एंड डोंट्स कुछ नहीं है। जब आप हीलिंग करा रहे होते हैं, हम्म। तो जो जब ऑनलाइन हो रही होती है, तो मैं लोगों से कहती हूँ कि एक दिया जला लो अपने पास, ओके। दैट्स कि ऑल। मैं अच्छा, ये एनर्जी बोलती हूँ, सेटल हो जाती है उससे। हाँ, कि एक दिया अभी भी, जैसे मैंने तो एक दिया जला लो अपने पास, दिया के साथ है, सो इट्स अ कनेक्शन। राइट। क्योंकि राइट। जोत तो हर जगह ही है ना, हमारे राइट। अंदर, हम उसी जोत में है, तो जोत जी। जला लो, तो बस उसी जोत से कनेक्शन कर लो। ये मैं करती हूँ, बाकी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही ब्यूटीफुल। सिंपल तरीका है शामनिक healing का, ब्यूटीफुल। टू सिंपल, जितना टू मैंने बेसिक, टू बेसिक। जितनी मैंने आपसे ऑन ऑफलाइन बात करी, बिफोर द सेशन बात करी, या जितना मैंने आपको सेशन में भी सुना है, एक चीज़ जो मेरे पास उतरी है कि आप अपनी इनर सेल्फ के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। अपनी इनर विज़डम के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। और हमारे जैसे जो सीकर्स हैं या हीलर्स हैं या जो योगीज़ हैं, अगर उनके लिए कोई एक शॉर्ट प्रैक्टिस आप शेयर कर सकें कि हम भी क्विकली बैठे बैठें अपने साथ और हम भी कनेक्ट कर पाएँ डिवाइन के साथ, अपनी इनर एनर्जी के साथ क्विकली। एक कोई शॉर्ट प्रैक्टिस अगर आप दे सकें हमें तो इट विल बी नो आई विल बी रियली, रियली ग्रेटफुल। प्रैक्टिस, तो मैं ये कहूंगी, जैसे शैमनिज्म में एक बहुत खूबसूरत चीज हम सीखे, हिट, दैट इज हॉलो इंटेंट एंड ट्रस्ट। हुँ, हिट। तो जो जैसे मैंने बताया, हॉलो, बी हॉलो अपना, उस सांसों में, ये तुम्हारा इंटेंट है कि मैं सिर्फ अपने साथ हूँ। जी। कई बार होता है ना कि मैं कुछ सोचना चाह रही हूँ, मेडिटेशन में जैसे आप जोत को भी सोच रहे हैं, यहाँ सिर्फ आपने आंख बंद की तो आप ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे, ये आपका ट्रस्ट होना चाहिए। तो कहते हैं शामन सीज मोर क्लियरली विद द आईज क्लोज्ड। हुँ, जब तक आंखें हैं, जब तक यहाँ तक है, ये तो इंद्रियों का खेल है। जी, ये जी। आंख बंद हुई तो तुम्हें यहाँ से तुमने देखना शुरू कर दिया। सो इफ वी क्लोज़ तो आईज़ एंड वी क्लोज आई एंड फॉलो, उस टाइम हर चीज को बोलो थमो, आपके ऊपर है। सोच का क्या है, सोच तो 60,000 आएंगी, हुँ, लाखों आएंगी, दौड़ जी, दौड़ के आएंगी, घोड़े पे सवार क्या, पता नहीं किस पे सवार होंगी। जी, हाँ, सोच है ना, जी, इंसान है ना, जी। तो उसको आपको बोलना पड़ता है, रुक, हुँ, आप करके तो देखो ये, रुक, अभी रुक, और राइट। एकदम हॉलो, उस सांस को महसूस करो, और इंटेंट डालो कि मुझे अपने आप से कनेक्ट होना है, अपनी जोत से, हुँ, और ट्रस्ट करो कि वो बोल,
आप वो हो हो रहा है। और हो, हुँ, इट्स एन ऑलवेज इन एक्शन। हुँ, आप कर नहीं रहे होते हो, आप हुँ, होते हो। हुँ, जैसे हुँ। बोलो ना कि भाई, डू यू बिलीव इन दिस, देयर इज गॉड और एनर्जी? आई सेड आई डोंट बिलीव, आई आई नो। नो। हुँ, ये कार्ल जंग ने बड़ा अच्छा, वो साइको एनालिस्ट थे, हुँ, हुँ। उनका ये बड़ा मशहूर था कि बिलीव में ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हैं, बिलीव्स को हम फॉलो करते हैं, रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं। राइट। नोइंग में समय, स्थिति, स्थान, परिस्थिति, हुँ। जीव, जंतु, पर, पर्वत, आकाश, सब एक हो जाता है। कितना फिर सुंदर है। आपके उस जगह के हिसाब से रिचुअल्स बनते हैं, स्पेशली शामनिज्म में ना। अब हुँ, शामन्स नॉन वेजिटेरियन भी है तो वीगन भी हैं। हुँ, अब साइबेरिया में जो बैठा है, हुँ। उसके पास कहाँ से वनस्पति पहुंचेगी? राइट। और वो फिर जानवर को इजाजत भी मांगते हैं, वो करके वो जानवर मारते हैं खाने के लिए या पहनने के लिए, हुँ, उसको स्टोरेज में नहीं डालने के। वो राइट। डालेंगे स्टोरेज में कि अगर बहुत ठंड -60 है, हुँ। हमें क्या पता, हम तो यहाँ पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में रह रहे हैं। जी, जी। सो वो जहां जैसी परिस्थिति है, उसमें ईश्वरीय तत्व को महसूस करना, उसको हर जीवन में, हर सांसों में ये जानना कि वो हुँ, है और तुम उसके अंश हो और वो तुम्हारे साथ है, यही बताता है कि आप बिल्कुल नेचर के साथ है। सीधा सादा सरल रास्ता। एंड देन ट्रस्ट, कि वो ट्रस्ट है ना। हुँ, भाई एक बच्चा भी तो माँ पे सिर्फ ट्रस्ट ही करता है या हुँ। बाप पे। जी, किसी स्कूल में जाते हैं, हम अपने बच्चे को भेजते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं कि ये स्कूल इसकी हिफाजत करेगा। जी। हॉस्टल में भेजते हैं हम हिफाजत, वो पायलट पे ट्रस्ट करते हैं, उस एयरलाइंस पे ट्रस्ट करते हैं, वो एयरलाइंस अच्छी है यार, हुँ, ये ब्रांड अच्छा है, जी। इसने जो बोला है वो करे। तो हॉलो, जब आप बैठ रहे हो, तो वो वही अंतराल, हुँ, वो श्वासों के बीच का जो अंतराल है, वो हॉलो करता है। दो सोच के बीच का जो, एक होता है कॉमा और एक होता है विराम, हुँ, विराम के बाद का जो अक्षर जो पहला लिखा जाता है, हुँ। ब्यूटीफुल। वो जो विराम है, हुँ। वो हॉलो है, उसने रोका। अगर व्यूअर्स में से किसी को आपके साथ कनेक्ट करना हो शमानिक हीलिंग के लिए, सीखने के लिए या सेशंस के लिए, तो हम लोग कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? इंस्टा पे आ जाइए, विभा गुटू हो, और विभा गुटू के नाम से ही इंस्टा में मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए। सी शी इज़ क्रिस्टल अवेलेबल तारा फॉर पे यू। जाइए, वहां पर है, वहां पे कांटेक्ट कर लीजिए। सीधा इंस्टा में विभा गुटू के नाम से मैसेज कीजिए, बात ब्यूटीफुल। कर सकते हैं। कई बार दो लोग भी होते हैं, कई बार 20-20, 25-25 लोग भी हो जाते हैं रिट्रीट्स में। कई बार होते हैं सिर्फ अकेला कहता है आप भाई अपने मुझे, रिट्रीट्स भी कर रहे हैं? हाँ मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट कर लेती हूँ, जब आदेश आता है, जब समय होता है तो चलो अनाउंस करते हैं, आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं, कभी 15 आ जाते हैं, कभी 25 आ जाते हैं, आ जाते हैं लोग। So she is accessible on Instagram. I'll be sharing all the links in the description. So do connect with her if you need a shamanic healing. और इस सेशन के बाद मेरे पास ये अंडरस्टैंडिंग आई है शमानिक हीलिंग को लेके। एक तो ये नॉन जजमेंटल है। दूस टोटली नॉन जजमेंटल। इट हेल्प्स यू ग्राउंड एंड इट हेल्प्स यू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम हायर पावर्स। आपके ब्लॉक सारे रिमूव हो सकते हैं। आपको मैसेज मिल गया, आप अपनी जर्नी में आप अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। और इट हेल्प्स यू एम्पावर योरसेल्फ, इट हेल्प्स यू बी योर हायर सेल्फ, इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद दैट वन एनर्जी विद योर इनर विजडम। सो आई थिंक इसकी ज़रूरत बहुत है। हम लोग सोल्यूशन ढूंढने निकल जाते हैं, पर अगर हम हीलिंग से उस प्रॉब्लम को ही जड़ से निकाल दें तो कितनी मज़े की बात है। अगर आप लोग इस पॉडकास्ट से कनेक्ट कर पाए, विभा जी से कनेक्ट कर पाए, शमानिक हीलिंग से कनेक्ट कर पाए, किसी भी तरह से आप कनेक्ट कर पाए, डू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विभा जी, इट वाज such a beautiful session, such a beautiful session. I want to have more with you if you allow me for that. So I understand permission also with shamanic healing. So श्योर श्योर। thank you so much for your energy. If there is any last message that you want to share with the viewers. आ, जो मैं चीज समझती हूँ और जो जानने लगी हूँ, जानी हूँ या नहीं अभी तक नहीं पता, क्योंकि ये तो जर्नी चल रही है। जी, सो जो मुझे समझ आना शुरू हुआ है कि भाई, मैं हमेशा कहती हूँ इंटेंट मैटर्स। जी, आपके पास बहुत चॉइसेस होती है, आपका इंटेंट क्या है। जी। और दूसरा कि जो जिंदगी है, वो उसको जीना होता है। ये सोचना कि अ, ऐसा हो वैसा, ये ख्वाहिशें हैं, डिजायर के बिना, हंगर और डिजायर के बिना तो कुछ भी नहीं होता ना। वो हुँ, तो बहुत खूबसूरत है।
लेकिन उसको जीना होता है। जिनके जो जिनको हम पूछते हैं भगवान, जो पैदा हुए हैं, जो मृत्यु लोक पे गए हैं, वही भगवान है। तो ईश्वर भगवान में ये अंतर है। हम्म आई होप ये पता हो। जो भगवान है उसने जन्म लिया और उसकी मृत्यु मुकर्रर है। तो वो एक दिन में नहीं, उनकी पूरी पूरी की पूरी जो उनकी अ, जीवन रहा, वो खुद में उनकी यात्रा रही। तो राम जी हों चाहे वो एक दिन में, तो नहीं, वो तो प्रिंस थे। हम्म तो 14 साल लग गए पुरुषोत्तम राम बनने में। जी बिल्कुल। कृष्ण यहाँ से आए, कृष्ण वहां तक पहुंच गए। जी। कहाँ कहाँ तक, और अपने शापित भी हो गए गंधारी से, वो भी लूट लिया। हम्म गीता भी दे गए, है ना। सिद्धार्थ बुद्ध प्रिंस होके निकले और फिर वो आगे बढ़े। तो बुद्ध तक, बोधिसत्व तक पहुंचते पहुंचते एक ये यात्रा है। तो जीवन, हर वक्त, हर चीज उस सांसें है, एनर्जी है, और यही जीवन। बाकी तो नाखून नहीं बना पाए हम, बस यही सोच सकते हैं कौन सी नेल पॉलिश लगा। तो ब्यूटीफुल। ये बस मुझे ये लगता है इंटेंट मैटर्स। एंड जिंदगी वो है, जिंदा हो तो जिंदा दिल रखो भाई। बाकी मौत तो है ही है, मुकर्रर है, जी। वो उसके हाथ में है। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक, अमेजिंग। लिव एंड थ्राइव। लिव एंड थ्राइव। अमेजिंग अमेजिंग। Thank you so much, Vibha ji. Thank you, everyone. Thank you for joining us.